السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج اعتکاف کے بیان پارٹ 2 میں آپ کو کچھ باتیں بتائیں گے اور یہی بتائیں گے کہ اعتکاف والوں کو کس باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ حضرات محترم، ہم نے ابھی اس سے پہلے ایک آڈیو آپ کے سامنے پیش کی تھی جس میں اعتکاف کا بیان تھا کہ اعتکاف میں کب بیٹھے، تو چونکہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو تو اعتکاف میں 20 رمضان مبارک مغرب کا وقت سے پہلے یعنی عصر کی نماز کے بعد سے ہی مسجد میں وہ بیٹھ جائے، اور 29 کا چاند ہو یا 30 کا چاند ہو، بہرحال جب بھی چاند ہو جائے تو وہ باہر آ سکتا ہے، اس کے بیچ میں وہ باہر نہیں آ سکتا، یعنی آخری کے عشرے میں اس کو اعتکاف میں بیٹھنا ہے مسجد میں۔ اور عورتیں مسجد میں نہیں بیٹھ سکتی بلکہ گھر پر جہاں پر وہ نماز ادا کرتی ہیں وہاں پر بیٹھے، یہ عورتوں کے لیے ہے۔ حضرات محترم، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے پارے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 187 میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو۔ اس میں بیان ہوا کہ رمضان کی راتوں میں روزہ دار کے لیے بیوی سے ہم بستری حلال ہے جبکہ وہ معتکف نہ ہو یعنی اعتکاف میں نہ ہو، لیکن اعتکاف میں عورتوں سے میاں بیوی والے تعلقات یہ حرام ہے۔ حضرات محترم، یعنی کہ اعتکاف کی حالت میں بیوی کے قریب جانا یہ منع فرمایا گیا۔ اب چونکہ مسجد میں ہے تو وہ کہاں جائے گا، اور مسجدوں میں عورتوں کا آنا بھی یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، اس زمانے میں عورتیں آ جاتی تھیں، نماز وغیرہ پڑھتی تھیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں پر مسجدوں میں آنے کی پابندی لگا دی تھی۔ اس کے بعد سے عورتیں بالکل بھی مسجد میں نہیں آ رہی ہیں، اور ہم لوگ حنفی مذہب کے لوگ ہیں، بہت سے غیر مذہبوں کے مسجدوں میں عورتیں نماز پڑھنے آتی ہیں، لیکن یہ سب جائز نہیں ہے۔ ہم لوگ حنفی مذہب کے لوگ ہیں، صرف مسجدوں میں ہمارے یہاں مرد حضرات ہی نماز پڑھتے ہیں۔ حضرات محترم، اعتکاف کے تعلق سے ہم آپ کو ایک روایت بیان کرنے جا رہے ہیں، سماعت فرمائیے کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان شریف میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا تو ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے 1 دن کا اعتکاف کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا، اور ہر خندق مشرق و مغرب کے مابین فاصلے سے بھی زیادہ دور ہوگی۔ اور حضرات محترم حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو روزانہ 1 حج کا ثواب ملتا ہے، اور واجب و سنت اعتکاف میں 1 لمحے کے لیے بلا اجازت سرائی مسجد سے نکلے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا بہر شریعت، یعنی کہ جو مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھا ہے اگر 1 لمحے کے لیے بھی مسجد کے گیٹ سے باہر نکل جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور مردوں کے اعتکاف کے لیے باقاعدہ شرعی مسجد ضروری ہے، یعنی مردوں کو مسجد میں بیٹھنا ہے اور روزہ رکھ کے بیٹھنا ہے، روزہ رکھنا یہ شرط ہے۔ معتکف کو مسجد میں کھانا پینا سونا یہ جائز ہے، یعنی جو اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ہے وہ کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، سو سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے، لیکن بہتر تو یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنا اعتکاف میں ہی گزارے، یعنی عبادت میں ہی گزارے۔ اور عورتوں کا اعتکاف ان کے گھروں میں
मस्जिद बैत में जायज है और फी जमाना उन्हें मस्जिद में एतिकाफ की इजाजत नहीं। इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं। वाजिब और सुन्नत एतिकाफ में रोजा शर्त है, नफली एतिकाफ में रोजा जरूरी नहीं, और नफली एतिकाफ चंद मिनट का भी हो सकता है। जब मस्जिद में जाए नफली एतिकाफ की नियत कर ले। हजरत मोहतरम, हमने आपको इससे पहले भी बता दिया था कि मस्जिद में एतिकाफ जो होते हैं वो कई तरह से होते हैं। एक तो रमजान शरीफ वाला होता है, और एक एतिकाफ जो नजर मानने वाला होता है, और एक एतिकाफ यूं ही मस्जिद में जब आते हैं जो मुस्तहब होता है और एतिकाफ की नियत वगैरह पढ़ लेते हैं, नवायत सुन्नत एतिकाफ वगैरह पढ़ करके बैठ जाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको हर लम्हे में एतिकाफ का ही सवाब अता फरमाता है। बारह शरीयत जिल्द नंबर 1 सफा नंबर हिस्सा जिल्द नंबर 1 हिस्सा 5 सफा नंबर 1021 पर है। और इसी के ताल्लुक से हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने रमजान मुबारक में 10 दिनों का एतिकाफ किया तो उसे 2 हज व 2 उम्रे का सवाब मिलेगा। बहार शरीयत जिल्द नंबर 1 हिस्सा नंबर 5 सफा नंबर 1020। हजरत मोहतरम, मस्जिद में खाना पीना सिवाय मुतकफ के दूसरे को नाजायज है, तो जो लोग मस्जिद में अफ्तार करते हैं उन्हें चाहिए कि एतिकाफ की नियत करके बैठे, वरना गुनाहगार होंगे। अल मलफूज हिस्सा नंबर 2 सफा नंबर 108। मोतकिफ ना तो किसी मरीज की इयादत को जा सकता है, ना जनाजे में शामिल हो सकता है, ना किसी औरत को छुए, और ना मस्जिद से बाहर निकले। हजरत मोहतरम, जो एतिकाफ मस्जिद में किए हैं यानी बैठे हुए हैं, तो उनको अगर कहीं पर भी फोन करके बताया जाए कि कोई इंसान बीमार पड़ गया है, तो अगर वो अगर बीमार की इयादत करने के लिए मस्जिद से बाहर जाता है तो इस सूरत में उसका एतिकाफ टूट जाएगा। और हजरत मोहतरम, अगर किसी की मिट्टी हो गई है, जनाजे में भी अगर वो जाता है, जनाजे की नमाज पढ़ता है, जाता है बाहर, तो इस सूरत में भी उसका एतिकाफ टूट जाएगा। और औरत को छूटता है या मस्जिद से बाहर निकलता है तो इसमें भी उसका जो एतिकाफ टूट जाएगा। अबू दाऊद शरीफ जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 492। और हजरत मोहतरम, अगर मुअतकिफ यानी एतिकाफ करने वाला मस्जिद से बाहर निकला तो एतिकाफ टूट जाता है, जिसकी कज़ा वाजिब होगी। बाहर सैयद जिल्द नंबर 1 हिस्सा नंबर 5 सफा नंबर 1023। रद्दुल मुहतार किताबुस सोम बाब एतिकाफ जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 501 पर है। मुअतकिफ का मस्जिद से बाहर निकलने के 2 उज्र हैं। हजरत मोहतरम, मुअतकिफ जो एतिकाफ करने वाला है मस्जिद से निकल सकता है बाहर, लेकिन उसके पास 2 उज्र होना बहुत जरूरी है। एक हाजत शरई और दूसरा हाजत तबई। हाजत शरई क्या चीज है? हाजत शरई मसलन जिस मस्जिद में ये एतिकाफ किए हुए हैं वहां जुमे की नमाज अगर नहीं होती है तो बाहर जाना पड़े यानी दूसरी मस्जिद जाना पड़े, तो इस सूरत में वो दूसरी मस्जिद में जा सकता है और वहां पर नमाज पढ़ सकता है, उसका एतिकाफ नहीं टूटेगा। और अजान देने के लिए मीनारे पर जाना है और रास्ता बाहर से है तो जा सकता है। बहुत सारी मस्जिदों में ऊपर से अजान दी जाती है और माइक वगैरह नहीं होते हैं, तो अंदर से रास्ता नहीं होता है, तो वो बाहर से रास्ता होता है, तो उस सूरत में वो बाहर के रास्ते से जा सकता है और खड़े होकर के अजान ऊपर से दे सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। यानी मीनारे पर जा सकता है अजान देने के लिए। ये पहले के जमाने में हुआ करता था हजरत मोहतरम। हाजत तबई दूसरा उज्र है हाजत तबई। हाजत तबई मसलन पेशाब, पखाना, वजू, गुस्ल, अगर खारिज मस्जिद में इनका इंतजाम नहीं है तो बाहर जा सकता है। हजरत मोहतरम, पहले के जमाने में बहुत सारी ऐसी मस्जिदें हुआ करती थी जहां पर पखाना, पेशाब, वजू वगैरह करने के लिए कोई भी साधन नहीं होता था, मस्जिद में कोई भी इंतजाम नहीं होता था, दूर दराज जाना पड़ता था, तो उस सूरत में भी वो बाहर जा सकता था। लेकिन अब खारिज मस्जिद में बना होता है तो मस्जिद में पेशाब भी कर सकते हो, पखाना भी कर सकते हो, इस सूरत में अब बाहर जाने की कोई हाजत न रही। हजरत मोहतरम, एतिकाफ रमजान के लिए रोजा रखना शर्त है, तो अगर रोजा नहीं रखा तो ये एतिकाफ नफल होगा, सुन्नत नहीं। अगर आप रोजा नहीं रख रहे हैं और एतिकाफ बैठ रहे हैं तो इस सूरत में आपको नफली एतिकाफ का सवाब मिलेगा, सुन्नत का एतिकाफ का सवाब नहीं मिलेगा। मर्द के लिए मस्जिद में एतिकाफ करना जरूरी है, और अगर औरत एतिकाफ बैठना चाहे तो जिस जगह वो नमाज पढ़ती है वहां एतिकाफ बैठ सकती है। दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 129। जिस तरह बिला उज़्र शरई मर्द का मस्जिद से निकलना एतिकाफ तोड़ देगा, उसी तरह औरत का भी घर से बिला उज़्र शरई निकलना एतिकाफ को तोड़ देगा, जिसकी कज़ा उस पर वाजिब होगी, अगरचे भूल से ही निकले या सिर्फ 1 मिनट के लिए ही बाहर निकले। हजरत मोहतरम, चूंकि औरतें भी एतिकाफ कर सकती हैं और औरतें एतिकाफ करती भी हैं, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी औरतें एतिकाफ करती थी, तो लेकिन एतिकाफ करने की शर्त यह है कि औरतें अपने घर पर ही एतिकाफ करें, लेकिन एतिकाफ में की हालत में बगैर किसी शरई उज़्र के अगर वो बाहर जाती हैं, अगर 1 मिनट के लिए भी निकले, चाहे भूल से निकले चाहे जैसे निकले, उनका जो है एतिकाफ जो है
टूट जाएगा। मोतिकब को फालतू बातों से परहेज करना जरूरी है। हाँ, अगर लोगों को दर्श देने के लिए महफिल करता है तो इजाजत है। दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 135। हजरात मोहतरम, मस्जिदों में बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि एतिकाफ के वक्त क्या करते हैं कि वो लोग बातें करने लगते हैं। तो फजूल की बातें इनको नहीं करना है, बल्कि इबादत में वक्त गुजारना है। और हजरात मोहतरम, बहुत सारी फजूल बातें करा करते हैं, मोबाइल चलाया करते हैं और इधर उधर दूर दराज के लोगों से मोबाइल में बातें किया करते हैं। तो ऐसा हरगिज नहीं करना है, बल्कि मस्जिद में बैठ करके कुरान मजीद की तिलावत करना है, या तस्बीह पढ़ना है, या नमाज पढ़ना है। बहरहाल मस्जिद में और अगर कुछ नहीं कर पा रहा है तो खामोशी से बैठा रहे, और अगर उससे ये भी नहीं हो रहा है तो सो जाए, क्योंकि मस्जिद में इत्काफ के लिए सोना जायज है, और जो है रोजे की हालत में सोना भी